So today we will see the last important part, which is operating system. Okay, so previously already learned about the data representation, basic computer understanding, and computer architecture and organizations, and some about the languages, assembly languages, which is a type of, there is a uh, high computer languages and low level languages. Okay, and today we'll try to understand the operating system. So hope so guys, you people are aware about the operating system. Okay, so can anybody tell me what is the, how many type of basically well known, if you are aware about the operating system? Yeah, फिर otherwise any operating system name which you people are using? Any basic understanding? Microsoft, Linux, Windows, Macs, open and closed source. Okay, Windows, Linux, Mac, Linux. Okay, fine. So these are the basically operating system. Windows जो basically हम use करते हैं, Microsoft Windows, and in this Windows operating system like Windows 11, Windows 8, Windows 7, XP, ये सब जो आप नाम सुनते रहते हो, these all are what operating system. And similarly, there is one more operating system which is काफी well known रहा है पहले, which is DOS. पता है DOS का full form क्या? What is the full form of the DOS? It's known as what? Disk operating system. Okay. So in a disk operating system, yes, Yumi, disk operating system. So concern is what ki, what are the features about the operating system, type of operating system, work of operating system like multitasking, multiprocessing, okay, real-time operating system, server concept. These all are the type. So here your understanding should be like such type of the words. जो ये words होते हैं operating system से relate करके, इनसे related इनका काम क्या है, how it's work, and related to that you will see the question. And after that, computer network is also very important part. This part is not mentioned in your syllabus, but last year there was 2-3 questions from the computer network. Okay, computer network as well as related to web technology. So that's why I added this part, an important part. We have computer network, to understanding about the computer network, communications, transmissions, as well as related to web technology, different type of the protocol. Okay, तो उनसे relate करके understanding भी होनी चाहिए. Last year question भी आया था. So we'll try to understand some part of that. Okay, so this is the last part. Here you can see the operating system of your syllabus, and with that here I added the internet, it means communication part. So just start with the basic understanding. So operating system is what? So with the help of this image, easily you can understand how the operating system works. So whatever you have hardware part, okay, you have motherboard, you have RAM, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, एज वेल एज जो अदर्स हार्डवेयर होते हैं, कीबोर्ड, माउस, दैट इज पार्ट ऑफ हार्डवेयर. So to communicate, to use the resources of these hardware, how they work, जो भी कंसर्न होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम help us to provide an environment to use these hardware resources. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी पे मोस्टली क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. And operating system will provide us a environment to use these hardware resources. जितने भी CPU processing, जो भी आप task perform करते हैं, तो operating system एक environment provide करता है. And in this operating system there is a different type of the applications होते हैं. कोई भी application ले लो आप, प्रोग्रामिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कहाँ पे करते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करते हो. इफ यू डोंट हैव द विंडोज, so how you will install this application? तो ये एक environment provide करता है आपको इंटरेक्ट करने के लिए, आपको इनपुट एंड प्रोसेस एंड आउटपुट जनरेट करने के लिए, जो आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसमें भी देखोगे तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसे डॉस क्या होता है, कमांड प्रमोट का होता है. विंडोज क्या होता है? विंडोज इज द जीयूआई बेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट्स कॉल्ड फुल फॉर्म जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. सो इन यहाँ पे बेसिकली आप कमांड यूज करते हो, यहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो, सारी चीजें आपको एज अ मेन्यू, एज अ आइकॉन, इस तरह से चीजें अवेलेबल होती है. सो विद द हेल्प ऑफ दीज यू कैन परफॉर्म द टास्क. Okay, and user will interact with the applications. Microsoft Word यूज करो, दिस इज वन टाइप ऑफ द एप्लीकेशंस. कहाँ पे इंस्टॉल है? ऑपरेटिंग सिस्टम में है. एंड जो भी यहाँ पे डेटा को सेव कर रहे हो, एंड जब भी आप Microsoft Word यूज कर रहे हो, व्हेन इट विल लोड इन विंडोज,
तो रैम में जा रहा है, तो ये हार्डवेयर रिसोर्सेज का कम्युनिकेशंस में हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यही मेन कोर कॉन्सेप्ट है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आपको एक विंडो, एक एक प्लेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, एज अ theoretical point of view, see here, the operating system is the most important program that run a computer. Operating system is the interface between the computer and user. ठीक है, एक विंडो है, इसीलिए इसको विंडोज बोलते हैं, इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थ्योरेटिकल पार्ट है, यू शुड टू रीड, यू शुड टू अंडरस्टैंड। जस्ट अ मोमेंट। Okay, then what is the function of operating system? So provide the user interface. देखो, चाहे डॉस हो या विंडोज हो, वट एवर, तो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सो विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेस यू कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जो सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे सारे कमांड्स होते हैं और यहाँ पे सब सारे GUI पार्ट्स होते हैं, जो कि ग्राफिकल इंटरफेस होता है विद द हेल्प ऑफ मेनू एंड ये सब सारी चीजें। सपोर्ट फॉर द बिल्ड द यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं अदर्स, लाइक डिस्क मैनेजमेंट, ये सब सारी चीजें। कंट्रोल टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है आप उसके टास्क को देख सकते हो, टास्क विद द हेल्प ऑफ टास्क मैनेजर्स, रैम, अगर से आप जो हार्डवेयर रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल अगर से हार्ड डिस्क है आपके पास, इफ यू वांट टू डिवाइड द स्टोरेज ऑफ द हार्ड डिस्क, कंट्रोल करना है, रैम या फिर कोई टास्क चल रहा है उसको इनेबल डिसेबल करना है, जिससे कि आपका रैम फ्री हो जाए, प्रोसेस फास्ट हो जाए। सो ये सब सारे कंट्रोल सर्विसेज होते हैं। सर्विसेज जो आप कभी कंप्यूटर में टास्क मैनेजर्स आपने यूज किया होगा, तो हियर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्विसेज, राइट? जस्ट अ मोमेंट, होप सो दिस पार्ट इज विजिबल। टास्क मैनेजर दिख रहा है। सो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, प्रोसेस है, इसमें अगर से कुछ आपको एंड करना है किसी किसी भी प्रोसेस को, सो दीज थिंग्स, ये जो टास्क मैनेजर है, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, राइट? So these things, the functions of the operating system, and here is some well-known operating system like DOS है, Windows है, Mac OS है, Apple के लिए Linux mostly use होता है वेब सर्वर के लिए, Solaris and Android, जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आपके फोन में यूज करते हो तो एंड्रॉइड सिस्टम होता है, या फिर तो Mac OS बेस होता है। ओके, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आईफोन यूज रहेगा। बाय द वे, मोस्ट ऑफ द फोन में एंड्रॉइड फोन जो यूज करते हो, एंड एंड्रॉइड फोन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए एंड इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द वेल नोन एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, the process, the function of operating system is what? So there is a different function it's provide for the users. So first one is what? Process management. The OS is responsible for managing the process which are executing the instance of the program. It's allow the CPU time, schedule tasks, and ensure the proper coordination among the process. And these processes are what is what all process from the start shutdown. So first of all, when you will start the computer, क्या होता है? बूटिंग स्टार्ट होता है। MS DOS does not support the GUI. Yes, MS DOS GUI सपोर्ट नहीं करता। दैट इज व्हाट? कमांड प्रमोट, आप कमांड के थ्रू यूज करते हो। ठीक है। सो हाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट व्हेन यू विल स्टार्ट द कंप्यूटर? फर्स्ट थिंग इज व्हाट? बूटिंग होता है। बूटिंग इट मींस योर विंडोज विल boot करेगा and then it will be open. Then these are the some process like open the file, save the file, install the applications, copy, print, send, whatever. So these all are the different type of the process which you can perform in Windows. Okay, so for example, if the any process will start, then it will run. Okay, and sometime interrupt वाला concept अगर से आएगा तो wait करेगा, otherwise terminate होगा। तो ये सारे process होते हैं, मतलब ready, run, process करेगा and then it will be running and then it will end, otherwise बीच में कुछ interrupt आया then it will wait also. So ये सब सारे flow of process के part होते हैं। तो these all are the process. Next is what? In process management, what are the things? देखो, process management, the OS responsible for managing, यही सब theoretical parts है basically. You will see the some questions, so ये वाला part understand कर लो and
later this PPT will be available for you, so आपको इसको अच्छे से read भी कर लेना, and then some questions is also there which I will show you कि इस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं. ओके, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो आप इजीली मैनेज कर लोगे. बट हाँ, कुछ पार्ट में जैसे मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी टास्किंग होता है, रियल टाइम होता है, ये सब जो वर्ड्स इनका मीनिंग क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना. ओके, सो ensure the proper coordination among the process, allocation of the CPU, time, schedule, task. Then second one is what? Memory management. The operating system manages the computer's memory, allocating the space, program, data RAM, and coordinating the swap and data between the RAM and secondary storage such as the hard drive when the needed. So you can see these process. देखो task managers जब भी आप देखोगे, see here, this is your task manager. Okay, so how the CPU managing these uses. फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, देखो यहाँ पे मेमोरी कितना यूज हो रहा है, 49%. सबसे ज्यादा अभी मेमोरी कौन यूज कर रहा है? जूम का जो एप्लीकेशन दिख रहा है ना, ये विंडो गाइस, टास्क मैनेजर का ये विंडो दिख रहा है. यस प्लीज, यस यस टाइप कर दिया करो फटाक से, कोई एक जन, तो आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ विजिबल है. ठीक है. ओके, सो हियर यू कैन सी हाउ द मेमोरी एलोकेशन टू डिफरेंट प्रोग्राम, किस तरह से डिफरेंट प्रोग्राम को यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन है. इन सेम वे इफ यू वांट टू कि कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा मेमोरी कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, तो यू कैन क्लिक ऑन इट, एंड टास्क भी कर सकते हो. ठीक है, सो इस तरह से अगर से वो नेसेसरी नहीं है, आपके नीड में नहीं. बहुत बार ऐसा होता है बैकग्राउंड में क्रोम बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करते रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू आर यूजिंग द सम अदर एप्लीकेशन, सो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है अगर से आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन या फिर रैम ज्यादा नहीं है. तो कंसर्न इज व्हाट, ये जो सारे टास्क हैं यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो, हाई लो. इट मींस किस किस एप्लीकेशंस को सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखा जाएगा. ओके, तो ये सब सारे थिंग्स हैं विच हेल्प अस टू मैनेज द प्रोसेस. अब इस पार्ट में क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट. फाइल सिस्टम, file system, the OS provide the file system that organize the manage the data storage device. It's handle the file creation, deletion, manipulation, as well as maintain the structure of the directories of the file permission. Concern is what, जो आपके पास ड्राइव्स है, डिफरेंट ड्राइव्स, C drive, D drive, E drive, even you can create network drive if you have any additional pen drive, so you can attach it. इन सब सारे डिवाइसेस में फाइल इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्रिएशंस, फाइल का लोकेशंस, ये सब सारे पार्ट्स विल प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. डिवाइस मैनेजमेंट, operating system control coordinate the input and output operation to various devices such as the keyboard, mic, printer, storage, device driver, facility communication between the hardware and OS. Device driver, hope so guys you people are aware. Just let me show, बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो आप डिवाइस ड्राइवर से. Then you will click on your computer. CEO, देखो जितने भी यहाँ पे सब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली यहाँ पे कनेक्टेड है. होप सो दिस पार्ट इज विजिबल. सो ये वाला पार्ट मोस्टली आप यूज भी करते हो समटाइम व्हेन यू आर अटैचिंग योर पेन ड्राइव, इट नॉट डिटेक्टिंग. सो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो इट्स प्रॉपरली इंस्टॉल और नॉट. साउंड ड्राइवर इट्स इंस्टॉल प्रॉपरली और नॉट. नेटवर्किंग डिवाइसेस जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लैन के लिए, वैन के लिए, हाउ इट्स वर्किंग. मॉनिटर्स के लिए यहाँ पे जो ड्राइवर्स है, कीबोर्ड्स के लिए जो ड्राइवर्स है. ओके, तो इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द वन डिवाइस मैनेजमेंट. यहाँ से आप इसको अगर से किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को आपको डिसेबल करना है तो इस तरह से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो. ओके, कोई डिवाइस अटैच कर रहे हो, इफ यू आर नॉट डिटेक्टिंग द एनी ड्राइवर, सो यू कैन अपडेट ड्राइवर, सर्च ड्राइवर. सो दीज आर द फैसिलिटीज आर हियर which operating system provide you. ओके, सो डिवाइस मैनेजमेंट हो गया. सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कौन बताएगा? सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, when you are using the Windows, basically operating system, so what is the meaning of security and protection? Easy है.
Security and protection, it means what? User credential. Yes. So basically you can create the ID and password. You can create the different type of user according to the user. Then management of the file, मतलब कौन से user को कौन सी file access होगी. तो basically जो आप login कभी किसी operating system को use करते हो तो it will ask about the password. ठीक है. Hope so आपके laptop में डेस्कटॉप में आपने सेट भी किया होगा. तो जो भी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन है, इट्स provided by the operating system to enforce the security measure, the protect and resources, the manage the user authentication, authorizations, access control, safeguarding against the unauthorized access and ensuring the integrity of the systems, right? Okay, after that, user interface. Operating system also provide us the user interface. Operating system provide the user interface that allow the user to interact with the computer. This can be the command line interface, CLI it's called, जिसको DOS को बोलते हैं. किसी ने यूज किया है कभी DOS? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI और कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, दोनों होता है. ठीक है, ये हो गया. नेटवर्किंग. Many modern operating systems include the networking capability to enable the communication between the computer and network. This involves the managing the network connection protocol and data transfer. So basically, networking is a part of when you are assigning the IP address, when you are connecting your operating system with the Wi-Fi. So you have to enter the ID and password. So ये जो feature है basically, this feature is part of the networking, and you can perform the stuff with the help of operating system. You can connect with the internet, LAN, WAN, whatever. You can assign the IP address. You can whatever the networking related tasks you can perform. Okay. Then error handling. Error handling is also part of that. The OS detect the handle the error that may occur during the execution of the program or interaction with the hardware. It's aimed to provide the stable and reliable computing environment. So error handling विंडोज में भी होता है. यू कैन चेक error, whatever Windows related error, या फिर any program related error. Resource allocations. Operating system manage the system resources such as the CPU time, memory and storage, ensure the fair efficient utilization of the running process. किस program को कितना memory allocate करना है, you can manage it. Some softwares भी ऐसे आते हैं, with the help of that you can do that. Okay, bootstrapping. The OS responsible for bootstrapping to the computer, loading itself into the memory during the startup process and utilize the system component. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. अगर से आपके bootstrapping booting में बहुत सारे ज्यादा सॉफ्टवेयर अगर से आपने इनेबल करके रखे हैं, फॉर एग्जांपल CEO, तो समटाइम क्या होता है, वेयर इज द ऑप्शन स्टार्टअप. देखो ये स्टार्टअप जो वाला पार्ट होता है ना, होप सो इट्स विजिबल. देखो ये स्टार्टअप होता है, इट मींस व्हेन द कंप्यूटर विल बूट. सो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट उनके फाइल्स और रन हो जाते हैं. तो अगर से मोस्टली यहाँ पे सारी चीजें देखो यहाँ पे डिसेबल्स करके रखा हुआ है. अगर जितनी ज्यादा चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी स्टार्टअप प्रोग्राम में, बूट मतलब समझते हैं ना, मतलब व्हेन योर कंप्यूटर विल बूट, सो सम सर्विसेज विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट. ओके, विदाउट योर परमिशन, या फिर आपने उसको अलाउ करके रखा है. तो कुछ बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं विच इज इंपॉर्टेंट. जैसे एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप बाई डिफॉल्ट ऑन करके रख सकते हो कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिक उसकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाए. इफ यू आर नॉट अवेयर देन इट्स वर्क. सो फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, सो यहाँ पे सारी चीजें डिसेबल है. इसको अगर इनेबल कर दोगे तो बाई डिफॉल्ट ये जब भी इस कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो इट विल वर्क. सो उसमें क्या होता है कि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग और आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर यूजिंग द कंप्यूटर, तो यहाँ पे अगर से बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी इनेबल मोड में है तो दे विल स्टार्ट टू यूज द रिसोर्सेस. और जब रिसोर्सेस यूज करेंगे तो अगर से कॉन्फ़िगरेशन लो है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, सो इट विल टेक टाइम बिकॉज उसको सारे सर्विसेज को रिस्पॉन्स करना, सारे सर्विसेज रिसोर्सेस यूज करेंगे एंड देन योर कंप्यूटर में भी स्लो. तो ये आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर यूजिंग द लैपटॉप और डेस्कटॉप. सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है उसी को इनेबल करके रखो, ऐड करके रखो. अदरवाइज यू कैन रिमूव, अगर नेसेसरी नहीं है. ऑकेजनली आप यूज करते हो ऐसे सिस्टम को, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे स्काइप है. अगर मैं डेली बेसिस पे यूज करता है स्काइप कॉल को, तो इसको मैं इनेबल करके रखता. बट बाई डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर है, इसको डिसेबल करके रखा है. अदरवाइज ऐसे सॉफ्टवेयर स्काइप हो गया, और एक आता है मीटिंग के लिए, काफी वेल नोन है उसका. ये सब सारे बहुत रिसोर्सेज लेते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट ही होगा स्लो हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एज ऑलरेडी इनेबल्ड है, स्टार्ट होगा तभी से ये स्टार्ट हो जाएगा सर्विसेज इसके.
ओके, तो बूटस्ट्रैपिंग इट मींस व्हेन योर कंप्यूटर विल स्टार्ट, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज एंड लोडिंग है इटसेल्फ इनटू द मेमोरी ड्यूरिंग द स्टार्टअप प्रोसेस एंड इनिशियलाइजिंग द सिस्टम कंपोनेंट्स, तो ये सब सारे पार्ट जो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चैट ओके, सिंगल, देखो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, यही सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चन फॉर्म होगा। ओके, इन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चंस फॉर्म होगा। रोशन विल रिप्लाई ऑन योर क्वेश्चंस। ओके, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू सपोर्ट वन यूजर एंड एग्जीक्यूट वन टास्क एट अ टाइम। दे आर सिंपल एंड ऑफ्टन फाउंड इन एम्बेडेड सिस्टम एंड ओल्डर पर्सनल कंप्यूटर। सो बेस्ट एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट MS DOS disk operating system. It's an example of single tasking operating system, an operating system that allow the single user to perform the only one task at a time. It's called the single tasking operating system. Palm OS is also example of the single tasking operating system. So basically ये जो डिवाइस होते थे इसमें क्या करते थे, आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते थे। ओके, इसी तरह से जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था डॉस में क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे आप एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो वही एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। सो इसका जो एग्जाम्पल है ना, ये सब यही सब सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ये फीचर एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर सिंगल ओएस। नेक्स्ट होता है आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, इस इमेज के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। यहाँ पे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ऑन है, कैलेंडर भी ऑन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप भी ऑन है, यहाँ पे ये सब सारे एप्लीकेशंस ऑन है, कैलकुलेटर भी ऑन है, ब्राउजर भी ऑन है। So here is what single user multitasking. These operation system allow a single user to run the multiple application. It means you can work on Microsoft Word. सेम टाइम पे आप मीडिया प्लेयर में सॉन्ग भी प्ले कर सकते हो, सेम टाइम पे आपके पास कैलकुलेटर में यू कैन use the calculation work. So simultaneously, modern desktop, laptop operating systems such as the Windows, Mac OS, Linux fall into the single in this category. Okay, तो यहाँ पे ये सब सारे words and these all are in which category, इन्हीं से पे questions का formations हो सकता है। नेक्स्ट होता है मल्टी यूजर्स। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट द concurrent access by the multiple user. These common in a server environment where many user need access to share the resources. Time sharing system and internet server as the multi-user system. Unix and Linux server often use the multi-user operating system. So यहाँ पे क्या होता है, एक सर्वर होता है जहाँ पे एक सिस्टम एंड एप्लीकेशन होगा। मोस्टली आप समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर्स जो होते हैं, तो इनका जो मेन जैसे समझो कि इफ यू आर वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर, सो एक एग्जांपल ले लो कि एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल है, एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल है, डीबी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएटेड है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द यूजर आर वर्किंग ऑन दिस database. So someone is creating the view, someone is creating the store procedure, someone is creating the different queries जो होते हैं, so related to that they are performing. तो ये अपने इंडिविजुअल सिस्टम पे नहीं परफॉर्म कर रहे, दे आर जस्ट एक्सेसिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सर्वर इन्वायरमेंट का सिस्टम है उसको दे आर एक्सेसिंग एंड दे आर परफॉर्मिंग द टास्क। तो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम पे दे आर एक्सेसिंग द सर्वर्स और यहाँ पे सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड द मल्टी यूजर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम लर्न किया था, व्हाट वाज इट, आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर्स के पर्पस वाले कंप्यूटर का जो सेग्रीगेशन था, पर्पस बेस्ड कंप्यूटर, सो जो डिफरेंट पर्पस स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किए होते, तो वहां पे एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है which give the real time operating system. So RTO is designed to meet the stringent the timing requirement of the real time system. This system must respond the inputs within the specific time frame. Example include the operating system use the robotics, okay, aerospace, industrial control system. So some operating system is like that which provide the real time environment to access the इनपुट, मतलब दे विल गेट द इनपुट फ्रॉम द समवेयर। अब ये सब अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एयरलाइंस सिस्टम में जो यूज होता है, तो रियल टाइम में उनको इनपुट मिलते रहता है एंड दे आर वर्किंग इन द रियल टाइम। ओके, so this is also one type of the operating system. Distributed operating system. So distributed operating system manage the group of independent computer
and make them appear as a single system, facility resources, sharing the coordinations among the network computer. Example include the Google, Android, Microsoft Windows distributed file system, and various distributed version of the Unix. So in this environment, like workstation is one place. So workstation क्या होता है? Already explained in the basic part. Then terminal is here. एक file server होता है जहाँ पे सिर्फ file होंगे. Okay, workstations, कंप्यूटर नोड्स, डेटाबेस सर्वर एक जगह. बेस्ट सिंपली आप समझ सकते हैं कि डेटाबेस सर्वर एक प्लेस पे होगा, फाइल सर्वर एक प्लेस पे होगा, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड एक्सेसिंग द रिसोर्सेज. So this is what distributed file sharing system. After that, network operating system. Network operating system designed to support the network communication and resources sharing. It's enable the multiple computer to communicate and share the resources like file, printer, novel net, where the Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server 2012 जो अभी चल रहा है 12, आई थिंक लेटेस्ट वर्जन भी आया होगा. आई ऑलरेडी वर्क ऑन 2008. मैंने इस पे काम किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008 पे काम किया. बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी पार्ट, फाइल शेयरिंग सिस्टम, प्रिंटर शेयरिंग सिस्टम, ये सब सारी चीजें इस पे यूज होती है. तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ऑफिस है, ठीक है, एंड देयर इज अ मल्टीपल मल्टीपल पीपल. ओके, मल्टीपल पीपल, एंड यहाँ पे ये क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008 मान लो अभी के लिए. सो जो उस ऑफिस का प्रिंटर इज कनेक्टेड विद दिस, तो एनीवन वांट टू टेक द प्रिंट. ओके, तो ये बेसिकली एक नेटवर्क, एक सर्वर एंड नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला इन्वायरमेंट होता है. एंड ईच यूजर का अपना यूजर आईडी पासवर्ड होगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन दे विल लॉग इन, सो दे कैन एक्सेस द हार्ड डिस्क. यहाँ पे जो स्टोरेज है उसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो रिसोर्सेस है उसको यूज कर सकते हैं. ओके, सो इस टाइप के, जैसे यहाँ पे क्लाइंट आप देख सकते हो, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाइंट एंड दे आर यूजिंग द सर्वर. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्पेसिफिकली इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया होता है. जो हमारा नॉर्मल विंडोज होता है, इसमें भी आप ये इन्वायरमेंट यूज कर सकते हो, बट उसके बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे नॉर्मली आपने किसी ऑफिस में या फिर अंडरस्टैंडिंग होगा तो पता होगा कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 फ्रेंड्स हो या 3 कंप्यूटर है आपके घर में, तो यू कैन मेक दिस कंप्यूटर एज अ सर्वर. नेटवर्क में आप इसको बना सकते हो, बट यू कैन जस्ट ओनली शेयर द फाइल्स. और ज्यादा टास्क क्रेडेंशियल जैसे होता है, क्रेडेंशियल के थ्रू फाइल को एक्सेस करना, वो परफॉर्म नहीं कर सकते. तो इस तरह के स्पेसिफिक टास्क कि ओनली द वैलिड यूजर कैन एक्सेस दिस सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज, फाइल सिस्टम, प्रिंटर सर्विसेज. तो फिर आपको ये विंडोज सर्वर जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008 2012, तो ये स्पेसिफिकली इस इन्वायरमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है. ओके, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपका एक्टिव डायरेक्टरी फीचर. विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ द यूजर, यू कैन असाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ द रोल्स. ओके, और भी बहुत सारे टास्क होते हैं इंटरनली आप लर्न करोगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, समझो एक कोर्स ही है पूरा. अगर से विंडोज सर्वर को आपको रीड करना है तो ये अलग ही पूरा एक कोर्स ही होता है, in which you can understand the different features and how it's work. By the way, अभी के लिए सिर्फ आपको समझना है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज वन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत सारे डिवाइसेस आप देखते हो, डीवीडी प्लेयर, इसको भी आप रिमोट से कंट्रोल करते हो, राइट? व्हेन यू आर कंट्रोलिंग द रिमोट, सो रिमोट से भी पावर ऑफ, ऑन, ओपन करते हो तो उसका जो भी सीडी ड्राइव होता है ओपन हो जाता है. सो बेसिकली यू आर गिविंग द वन इनपुट्स, रिमोट के थ्रू आप इनपुट दे रहे हो एंड इट्स परफॉर्मिंग. उसके अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो ओपन हो रहा है, प्ले हो रहा है, पॉज हो रहा है, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है. सिमिलरली कैमरा के अंदर आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल रोबोट के अंदर इस तरह से होते हैं. एंड माइक्रोसॉफ्ट ओवन यहाँ पे देख सकते हो, ये सब सारे जो डिवाइसेस हैं गेमिंग के लिए होता है. तो इसके अंदर भी तो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, which is taking the input from you and processing it, and according to the device जिस चीज के लिए वो डिजाइन किया गया उस टाइप के आउटपुट भी आपको प्रोड्यूस कर रहा है. तो इट्स कॉल्ड व्हाट embedded operating system. So embedded operating system designed to run the embedded system, which are dedicated computing devices. The specific function example including the system from the TV, स्मार्ट टीवी आजकल आते हैं, राउटर्स, राउटर के अंदर भी होता है, राउटर के अंदर भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं. वी आर असाइनिंग द सम इनपुट एंड देन इट विल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दैट. नेटवर्क का जो नेटवर्क का डायरेक्शंस, नेटवर्क का कंट्रोल, नेटवर्क में जो भी क्रेडेंशियल्स, वो सब सारी चीजें राउटर्स के अंदर भी मैनेज होती है. इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, जो भी चीजें इस टाइप की डिवाइसेस होती है, इनसाइड दैट देयर इज सम ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके,
देन आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी यूज टू, यू पीपल आर अवेयर, ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड, विंडोज फोन। तो ये सब क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग ओएस डिजाइन फॉर द स्मार्टफोन एंड टैबलेट, एग्जांपल इंक्लूड द एंड्रॉइड ओएस, हार्मोनी ओएस। These operating system optimize the touch interface, portability and support the wide range of the application. Okay. उसके बाद है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम enable the multiple user to share the computer simultaneously by dividing the CPU time into the small time job. This allow the user to interact with the computer in real time. Time sharing system where the prominent mainframe and mini computers as the system rapidly switch from the one user to another user. It's given the impression to entire computer system dedicated to user allows the being the shared among the multiple user. So basically इसका जो मेन आप देख सकते हो कि वेबसाइट इन्वायरमेंट में जो होता है, जहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट जिस सर्वर पे ऑलरेडी होस्टेड होते हैं, सो वहां पे जो टाइम शेयरिंग और जो रिसोर्सेस वो शेयर करता है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, इसको कम करना है, ज्यादा करना है, एज पर द नीड। सो ये उसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। ओके, सो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स इसके बेस्ट एग्जांपल है। अब ये कहाँ पे यूज होते हैं, ऑलरेडी बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। Then batch processing operating system. Batch processing operating system is execute series of the job without the user interaction. User submit the job and proceed in the batch, and operating system execute them sequence in this type of the common in early mainframe systems. So job one, job two, ये mainframe में basically use होता था. So बैच वाइज इसका और सिंपल सा एग्जांपल आपको समझना है तो अगर से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल कभी आपने यूज किया होगा तो उसमें भी होता है एक बैच प्रोसेसिंग। दैट इज द डिफरेंट इन दैट, बट कॉन्सेप्ट वही है। एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है कि जैसे आप सिंगल सिंगल क्वेरी इंटर करते हो, सिंगल क्वेरी करते हो, इंटर करते हो, तो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, देन इट में भी कुछ सक्सेसफुल होंगे, कुछ फेल भी होता है। और सम टाइम बहुत सारे क्वेरी आ रहा है तो उसमें कुछ कुछ ऐसे भी क्वेरी होंगे विच विल बी डिले, और ऑल द क्वेरी आर इंटरकनेक्टेड। समझो डेटाबेस को अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग द मल्टीपल क्वेरी फॉर द एग्जीक्यूशन, तो इसमें कुछ कुछ डिले चले जाता है, कुछ कुछ पोस्टपोन हो जाते हैं, क्यू में चले जाता है, जो क्यू का कॉन्सेप्ट होता है इन एसक्यूएल सर्वर। तो उसको उस सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है एसक्यूएल सर्वर में, जहाँ पे आप इस तरह के टास्क परफॉर्म करते हो। तो बैच बैच सिस्टम इट मीन जितने भी क्वेरी आपने अब किया है ये एक बैच में एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो सब एक साथ ये इस क्वेरी, इस बैच में जितनी क्वेरी है सब एक साथ होगा। उसके बाद अगर से कोई क्वेरी आ रही है जो दूसरे किसी यूजर से, सो आफ्टर दैट वो क्यू में रहेगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इसमें जो सिंगल सिंगल होता था तो बहुत बार प्रॉब्लम्स होती है कि किसी दूसरे ने एक्सेस किया। फॉर एग्जाम्पल अगर से समझ लो कि एक क्वेरी ने किसी यूजर को फाइंड करने के लिए, किसी यूजर के डिटेल्स को फाइंड आउट करने के लिए किया है, और उसके पहले समझो किसी ने उस यूजर को डिलीट करने के लिए डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसने डिलीट कर दिया, फिर इसकी क्वेरी भी रन हुई, फिर इसको नहीं मिल रहा है। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इस टाइप के जितने भी एक टास्क होते हैं एक साथ वो परफॉर्म होंगे। ओके, कोई यूजर्स को एक्सेस कर रहा है तब तक किसी ने उसको अपडेट कर दिया, किसी यूजर को कोई एक्सेस कर रहा है तब तक किसी ने उसको अपडेट कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम्स होती थी। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक बार पहले जितनी भी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट सेकंड बैच विल एग्जीक्यूट। ओके, तो ये एक एसक्यूएल सर्वर में काफी अच्छा फीचर है। तो उसी के अकॉर्डिंग यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस। तो होप सो दिस पार्ट इज क्लियर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिफरेंट टाइप हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शन हैं। ओके, तो सिंपल ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स से यू पीपल आर अवेयर, जस्ट ओनली यू जस्ट हैव टू अपडेट द थ्योरेटिकल पार्ट। Then operating system interfaces. Operating system provide the interface that enable the user and software application to interact with the computer's hardware and services. These are primarily two type of the interface in the operating system: command line (CLI) and a graphical user interface. Okay, so in this part CLI, if you will see, so command promote. The CLI user interact with the operating system by typing the commands into the text-based terminals or command promote. The user
enter the command and operate the system, execute them. CLI interface, the efficient or experienced user who are comfortable with the text command. Example include the command promote Windows terminal in Mac OS, the various terminal emulator in a Linux. So basically ये जो वाला black window देख रहे हो आप, इसमें जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हो, किसी को आता है कमांड प्रमोट डॉस? किसी ने कभी यूज किया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कमांड्स, DIR, कॉपी, MD, CLS एंड क्विट? मैंने बहुत पहले, आई थिंक 2008 में मैंने इसको काफी यूज किया था, उसके बाद फिर से कभी यूज नहीं किया। बहुत सारे कमांड्स याद भी थे, अभी तो भूल भी गया। लिनक्स में किया है मैंने। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छा मुझे याद था, मुझे आई थिंक मोर देन 100 कमांड्स याद थे, बट अभी सब भूल गया हूँ। इट्स वेरी लॉन्ग टू यूज इट। उसमें एक स्पेसिफिक, अभी ये तो मैंने विंडोज का कमांड यूज किया है, मतलब विंडोज का समझो कमांड प्रमोट यूज किया, बट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेसिफिक ओपन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल DIR कमांड है, तो डायरेक्टरीज को देखने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा कमांड याद नहीं है अभी। सो DIR आप करोगे तो सारे डायरेक्टरीज देख सकते हो। चेंज डायरेक्टरी करने के लिए जैसे CD यूज होता था, CD CD करके आप, अभी जैसे मुझे बैक जाना है तो आई थिंक वर्क करना चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग, होप सो ये दिख रहा होगा ना ब्लैक विंडो सबको, ठीक है। CD चेन चेन डायरेक्टरी बिन, आई होप कि ये वर्क करना चाहिए। नहीं किया क्या? प्रॉब्लम क्या है इसमें सर? ये आएगा, ओके। अच्छा, सीधा CD करके बैक चले जाओ। हाँ, ये तो पूरा बाहर आ गया। मुझे सिर्फ एक डायरेक्टरी पीछे आनी है। ओके सर, ये वाला करो सर। ठीक है, बाय द वे देखो यहाँ पे DIR किया तो ये डायरेक्टरी दिखी। तो कंसर्न इज व्हाट कि यू शुड टू वेरी प्रो, जितना इजिली हम कर लेते हैं इसमें। GUI में फटाफट फटाफट क्लिक किया, मेनू पे क्लिक किया, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फाइल को राइट क्लिक किया, फाइल क्रिएट किया, तो ये उतना इजी नहीं होता। यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल द कमांड्स जो लिनक्स यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। स्पेशली नेटवर्किंग में मैंने बहुत सारा यूज किया था। जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल में टू कॉन्फ़िगर द राउटर, राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मोस्टली कमांड प्रमोट ही यूज होता है। मतलब इस तरह से टर्मिनल इसको बोलते हैं, तो टर्मिनल यूज होता है। तो टर्मिनल्स में जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, EIGRP, RIP प्रोटोकॉल फॉर द नेटवर्किंग पर्पस, टू डिफाइन द गेटवे, टू डिफाइन द IP एड्रेसेस, टू कंट्रोल, टू मेक द वर्चुअल लैन इन एनी स्विचेस, तो वहां पे टर्मिनल्स ही होते हैं। तो उसमें काफी पहले यूज करता था। तो कंसर्न इज व्हाट कि ये क्या आपका कमांड प्रमोट है, ठीक है। तो ये आपका CLI ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस तरह से भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये मोस्टली यूज भी होता है उसमें, राउटिंग पर्पस के लिए अभी भी यूज होता है, लिनक्स में भी यूज होता है। ओके, तो कंसर्न इज व्हाट कि यहाँ पे सारी ये सब कमांड्स पता होने चाहिए, याद रखना। कभी कभी हो सकता है कि ये सब बेसिक कमांड भी एग्जाम में आ जाए, बट ठीक है। DIR कॉपी टू मेक द न्यू फोल्डर, CLS टू क्लियर द स्क्रीन, क्वाइट एग्जिट करने के लिए। Okay. After that, next one is what graphical user interface. The GUI provides the visual way for the user to interact with the operating system and applications instead of the typing the commands. User navigate through the system using the graphical elements such as the icon, buttons, windows, and menus. ये सब सारे parts होते हैं, याद रखना। GUI user friendly and accessible to the broader audience. Example including the Windows, desktop, Macs, OS Finder, and various Linux desktop environment like the Genome and KDE. Okay, तो ये सब क्या होता है ये तो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। होप सो यू पीपल आर अवेयर, बट इससे वेल नोन है जिससे हम भी अवेयर है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंटर, अब देखो पॉइंटर क्या होता है। ये जो मेरा पॉइंट चल रहा है माउस का जो होता है पॉइंटर, इट्स कॉल्ड द पॉइंटर। आइकॉन, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं। आइकॉन इज व्हाट, डेस्कटॉप इज व्हाट, विंडोज इज व्हाट, मेनू इज व्हाट। ओके, सो दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट, these are the part of the Windows operating system, part of the graphical user interface. Okay, so ये सब सारे इसके पार्ट्स होते हैं। So Windows में these all are the things which you have to understand, which you have to remember. Okay, तो यही सब सारी चीजें होती हैं Windows में, which help us to work, which
आवर अंडरस्टैंडिंग शुड बी लाइक इट। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें इंटरनली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में डिवाइस मैनेजमेंट, प्रिंटर्स, ये सब सारी चीजें। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया, प्रैक्टिकली इफ यू आर अवेयर तो इट्स गुड, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। आई एम नॉट अवेयर, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, मैंने बताया ना ये दोनों से बहुत ज्यादा मैं भी अवेयर नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू द डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। देखो, अब डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का पार्ट, बिकॉज in a Windows if you want to access the network. So before that, some theoretical part is important, how the data transmit, data communications कैसे होता है, और इससे भी questions आते हैं, simplex, duplex, full duplex, ये जो concept है, तो इसको understand कर लो। इसमें कुछ additional मैंने add भी किया है, which is may be asked in your exam, otherwise ठीक है, नहीं भी आया तो understanding के लिए important है। Okay, so data communications, part of data communication is the transfer of the data or information between the source and receiver. This is a what? Data transmission, data transfer. Okay, the source transmit the data and receiver receive the data. नॉर्मली हम विंडोज में भी अगर विंडो सर्वर यूज कर रहे हैं या फिर मेल आप यूज कर रहे हो तो वहां से एक जगह सेंड करते हो, रिसीव करते हो, यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। द पर्पस ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन इज टू प्रोवाइड द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट अलाउ द कंप्यूटर with different disk operating system languages cabling and location to share the resources. So data transfer के लिए बहुत सारी चीजें होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, केबलिंग्स होती है, किस केबल के थ्रू कनेक्टेड है, लोकेशंस होता है, शेयर का मैनर्स होते हैं, देन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड द प्रोटोकॉल। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, यही सेम लाइन पूछ लिया जाता है। प्रोटोकॉल इज व्हाट, आई थिंक मैंने पहले भी बताया, तो याद रखना ये वर्ड, प्रोटोकॉल इज व्हाट, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल इट मीन विच टाइप ऑफ द डेटा और विल बी ट्रांसमिट। इट मीन टीसीपी आईपी है तो टीसीपी आईपी पे किस टाइप के डेटा ट्रांसमिट होंगे, एसएमटीपी है तो उस पे किस टाइप के डेटा ट्रांसमिट होंगे, एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो उस पे किस टाइप के डेटा ट्रांसमिट होंगे, तो सबका सेट ऑफ रूल्स होता है एंड स्टैंडर्ड इन द डेटा कम्युनिकेशंस। ओके, नाउ सी द डेटा फ्लो। जो डेटा फ्लो होता है, डेटा फ्लो इज अ फ्लो डेटा बिटवीन द टू पॉइंट्स, द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो कैन बी डिस्क्राइब एज। सो देखो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होने का नेचर है, द वे हाउ द डेटा ट्रांसमिट, सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द वे। ओके, एक तो होता है सिंप्लेक्स, इसमें क्या होता है कि डेटा फ्लो इन ओनली डायरेक्शन ऑन द डेटा कम्युनिकेशन लाइन मीडियम, एग्जांपल आर रेडियो एंड टेलीविजन। सो ओनली वन वे में डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, एक जो होगा सेंडर होगा एंड एक होगा जो रिसीवर होगा। तो जैसे घर का एग्जांपल ले लो आप, कि यहाँ से जैसे जो रेडियो स्टेशन या फिर जो भी जहाँ से भी ब्रॉडकास्टिंग होता है इस टाइप के, तो टीवी स्टेशन से ट्रांसमिट होता है डेटा एंड एक ही डायरेक्शन में होता है, एंड जो आपका टीवी का एंटीना होता है या फिर टीवी का जो भी डिवाइसेस है, दे विल get the data in from one direction. So it is called what? Simplex. Okay, यहाँ से रिवर्स डेटा नहीं जाता, ये रेडियो स्टेशन को डेटा नहीं प्रोसीड करता, सिर्फ रिसीव करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट सिंप्लेक्स, ये वर्ड याद रखना एंड इसका एग्जांपल याद रखना, इस पे सिनेरियो देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्म कर सकता है। उसके बाद होता है हाफ डुप्लेक्स, डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ वन टाइम, डेटा कम्युनिकेशन लाइन। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्सेशन ऑफ द वॉकी टॉकी बेस्ट एग्जाम्पल होता है। मतलब यहाँ पे डेटा रिसीव, सेंडर भी होगा रिसीवर होगा, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही भेज सकता है। ओके, डेटा फ्लो, ईच पर्सन टर्न टॉकिंग, इफ बोथ टॉक एट वंस नथिंग ऑकर्स। तो जो भी इसमें बात करेगा एक टाइम पे एक ही बात करेगा। और आपका जो बेस्ट एग्जांपल आपने देखा भी होगा पहले, रेडियो किसी किसी मूवी में देखा होगा कि बोलने के बाद या फिर मिलिट्री वाले जैसे यूज करते हैं, तो आफ्टर आफ्टर डिलीवरिंग द मैसेज दे विल से व्हाट, ओवर। सो फिर उनको पता चलता है नेक्स्ट आदमी को कि अभी हो गया इसका, तो नाउ दिस पर्सन विल सेंड हिज और हर मैसेजेस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हाफ डुप्लेक्स। Then is what full duplex, data flow in both directions simultaneously. Modem are the configured to flow the data in both direction, both directional simultaneously. ठीक है, सो मॉडेम बेसिकली इंटरनेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, टेलीफोन अभी आप यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर सेम टाइम पे दोनों, सेंडर भी सेंड कर सकता है, रिसीवर भी सेंड कर सकता है, दोनों रिसीव भी करेंगे, दोनों सेंड भी करेंगे, तो दिस इज द वे ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, याद रखना, हाउ द डेटा ट्रांसमिट इन अ वे ऑफ द सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, एंड इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया। अब ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड, जो डेटा ट्रांसमिशन का तो मैनर समझ गए कि सिंगल वे में होगा, बोथ वे में होगा, ओके, सेम टाइम पे होगा दोनों साइड से। ओके, अब क्या क्या बेसिक कैटेगरीज होती है डेटा ट्रांसमिशन की, तो गाइडेड होता है, अनगाइडेड। ओके, तो गाइडेड बेसिकली केबलिंग वाला पार्ट, अनगाइडेड मतलब जो वेब्स के थ्रू होता है।
Okay, so transmission media use the cabling system that guides the data signal along the specific path. Unguided transmission media consist of the mains for the data signals and travel, but nothing to guided them along the specific path. See, transmissions on a media, अब इसको जो different part में हम divide कर सकते हैं, guided media and unguided media. एंड यहाँ पे देखो ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपने घर पे देखा होगा लैन केबल होता है बेसिकली, जो इंटरनली ऑफिसेस में यूज होता है लैन केबल, जिसमें 8 नोच होते हैं, मतलब इस तरह से उसका जो कलर्स होते हैं ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, इस तरह से जो केबलिंग्स होती है उसको केबलिंग को पंच किया जाता है, जो टेलीफोन लाइन में भी यूज होता है। सो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है। देन आफ्टर दैट कोएक्सी केबल, जो अभी तक यूज होता था, अपने घर पे कभी इंटरनेट लिया होगा तो कोएक्सी केबल्स के थ्रू आता था। अभी तो मोस्ट ऑफ द जगह पे ऑप्टिक फाइबर हो गया, बट इसके पहले जो कनेक्शंस आते थे, जो भी आपने सर्विस प्रोवाइडर से अगर से घर पे इंटरनेट लिया होगा तो उसके बाद अभी सारी चीजें अपडेट हो गई है, तो अभी वो फाइबर में कन्वर्ट भी करे, स्पीड भी काफी अच्छा मिलता है। ओके, सो दीज आर द पार्ट ऑफ द गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड इट मींस माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव होता है एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड तो नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ पूछ ले। सो ट्विस्टेड पियर, ये देखो ये केबल होता है लैन केबल जो आपने देखा होगा, इसमें इस तरह से ट्विस्टेड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स होता है एंड केबल जैकेट्स एंड ट्विस्टेड पेयर साइड व्यू। तो इस तरह से दो दो केबल का होता है, इसका जो ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, जब भी आप लैन के लिए करते हो तो इसका जो कनेक्शंस होता है इसमें भी दो टाइप के होते हैं। नेटवर्किंग के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट, इसकी कोडिंग को रिमेंबर करना। तो इसमें एक स्ट्रेट होता है कैबलिंग, एक होता है क्रॉस कैबलिंग। कैबलिंग होता है उसका होता है ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन एंड ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ठीक है, तो इस तरह से कैबलिंग होता है जो आपके घर के सिस्टम को स्विच से लेके आपके सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए इसकी कोडिंग होती है। ओके, so the wires twisted pair cabling are twisted together in a pair. Each pair consists of the wire used to the plus VE data signal and wire minus VE data signal. Any nodes that appear in one wire of the pair will also occur on the wire others. When the nodes appear in both wire, it's cancel the null itself but are the receiving the data. अब इसके टेक्नोलॉजी के बेस पे दो टाइप से पेयर होते हैं जो आपको नहीं अंडरस्टैंड करना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हाँ, इफ समवन वांट टू मेक देयर करियर इन अ नेटवर्किंग फील्ड तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है इसके जिस तरह से पेयर को कनेक्ट किया जाता है, स्ट्रेट स्ट्रेट पेयर एंड क्रॉस। ओके, दो टाइप से इसको कनेक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट कोएक्सी केबल, कोएक्सी केबल होता है, कोएक्सी केबल consists the two conductors. The inner conductor is held inside the insulator with the others conductor woven around the providing the shield is insulator protecting the cable called the jacket over the other conductor. So just इससे aware रहो कि this is the coaxial cable is also used for the connections. Okay, transmission media है। आफ्टर दैट ऑप्टिकल फाइबर, जो अभी रिसेंटली मोस्टली आप देखते हो यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ द थीन ग्लास फाइबर दैट कैन कैरी द इंफॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड द। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड्स स्पेक्ट्रम लाइट जो यूज होता है इन विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इन गाइडेड पार्ट, तो अगर ये वर्ड पूछ लिया आपसे, सो स्पेक्ट्रम लाइट स्पेक्ट्रम, सो याद रखना इट इज पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। The typical optical fiber consists of the very narrow strand of the glass called the core. Around the core in the concentric layer of the glass called the cladding, and the coating in the cladding is the protective coating consists of the plastic, it is called the jackets. Okay, so these all are the part of that. अब इन सबसे ये जो वर्डिंग्स है, ये वर्डिंग से पूछ सकता है कि इन विच टाइप ऑफ द केबलिंग सिस्टम दिस बिलोंग, कोर किस में होता है, कोटिंग किस में होता है। सो कोएक्सी केबल्स ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट है ये सब। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बना तो बन सकता है, बाय द वे अंडरस्टैंडिंग के लिए रिमेंबर रखो। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज द लाइन ऑफ द साइड ट्रांसमिशन। द ट्रांसमिशन स्टेशन मस्ट बी विजिबल कॉन्टेक्ट विद द रिसीवर स्टेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एटलीस्ट विजिबल होना चाहिए। द टिपिकल रिलायंस साइड ड्यू टू द अर्थ covertures is only 50 kilometer. The horizon repeater station must be placed so that the data signal can hop, skip and jump across the country. So this is the one way microwave होता है। फिर radio waves, there are three type of the radio waves: ground wave, ionospheric line of the site. So ground wave अगर देखो तो ground wave operation flow the
कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो ठीक है, इन सबसे सारी चीजों से अवेयर रहो, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं आना है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर से कुछ क्वेश्चन फॉर्म हुआ तो विच इज फाइन, अदरवाइज वंस ट्राई करो इसको रीड करने का, इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग रखना। ओके, सो ग्राउंड वेव progression flow the curvature of the earth. Ground wave have the carrier frequency up to 2 megahertz. AM radio is example of the ground wave proportions जो आप रेडियो देखते रहते हो। And ionospheric progressions bounce off the earth, and ionospheric layer is the upper atmosphere. It's operate the frequency range 30 to 85 megahertz, because it's depend on the earth. Ionospheric, it's change with the weather and its time, and HM radio operate in this range. Okay, line of the site operation transmit exactly in the line site. The receiver station must be in a view of the transmission. It's limited by the curvature of the earth, and ground base station 100 kilometer for the horizon and horizon. Example of the line progression is the FM radio. तो कभी कभी अगर से बहुत आपके अंडरस्टैंडिंग या फिर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट। सो लाइन ऑफ स्टेट प्रोग्रेशन FM रेडियो बिलोंग, जो आप सुनते रहते हो, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। Then next one is what? Satellite. Satellite is a transponder unit that receive and frequency and transmit another, that are set of the geostationary orbit directed over the equators. This geostationary orbit 36 kilometer from the Earth surface. At this point, the gravitational pull of the Earth and the centrifugal force Earth rotation are balanced and cancel each out. So basically यहाँ पे जो इसको सेट किया जाता है, एंड मोस्टली अभी जो आप DTH यूज करते हो, दे आर पार्ट ऑफ सिग्नल, कहाँ से आता है? सैटेलाइट व्यू से आता है। These uplink is the transmitters of the data to the satellite. The downlink is the receiver data. Uplink, downlink are also called the Earth station because they are located on Earth. The footprint is the shadow. The satellite is can transmit into the shadow, being the area that can receive the satellite transmission. Okay, so these are the part of that. Just understand, थोड़ी सी रखो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड तो नहीं है, बट हाँ पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन है, तो जस्ट कितने टाइप के गाइडेड और अनगाइडेड होते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, एंड आफ्टर दैट नेटवर्क टोपोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई थिंक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था इस पे, सिनेरियो के बेस पे, कि विच सिनेरियो के लिए हो सकता है। इसी एग्जाम में था, आई थिंक MCA में था, दूसरे एग्जाम में था, मुझे याद है, बट टोपोलॉजी इज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाउ द devices are connected in which manner, so ये understanding है। The pattern of interconnections of nodes in the network is called the topology. Okay, so there is a different type of the topology: bus, tree, ring, star, maze and hybrid. Hope so you people are already aware, या कहीं ना कहीं तो स्टडी किया ही होगा कि सिलेबस में रहता है, बट वंस माय सजेशन इज रिवाइज करके रख लो। पार्ट ऑफ नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। बस एक क्वेश्चन भी आया तो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द टोपोलॉजी। फर्स्ट वन इज व्हाट? बस टोपोलॉजी। हाँ, बस टोपोलॉजी यूज विद द इथरनेट। अभी जो सबसे ज्यादा रोशन यूज होता है वो स्टार टोपोलॉजी भी, स्टार टोपोलॉजी यूज होता है इथरनेट में भी। ओके, क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, अभी कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होता है? स्विचेस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, राइट? स्विचेस का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, और स्विचेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी का पार्ट होता है। बट स्टार टोपोलॉजी में भी एक बस टोपोलॉजी जिसको आप मिक्स कर सकते हो। समझो यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच है। अब इस स्विच से बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड है, इस स्विच से बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड है, इस स्विच से भी बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे आपका राउटर है, इस राउटर से इस स्विच में कनेक्शन गया, और यहाँ पे भी बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड है कंप्यूटर। बट इससे क्या होगा? ये कनेक्ट कर दिया, इससे ये कनेक्ट कर दिया, इससे ये कनेक्ट कर दिया। समझो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे क्या लगा हुआ है? राउटर लगा हुआ है। और उसके बाद जो समझो फोर्थ फ्लोर की बिल्डिंग है, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। तो जो फोर्थ फ्लोर पे जो अदर सिस्टम है इस स्विच के साथ कैसे कनेक्टेड है? इन मैनर ऑफ स्टार टोपोलॉजी, राइट? जितने भी कंप्यूटर लैब ले लो, आपके आपके कॉलेज का होगा, तो सारे कंप्यूटर्स इस स्विच से कनेक्टेड हैं। तो ये यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इट्स व्हाट? स्टार टोपोलॉजी। बट ये स्विच में जो ये कनेक्शन इस सेकंड फ्लोर पे जा रहा है, सेकंड फ्लोर पे जो जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? बस जैसा हो गया। फिर इस थर्ड फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर लैब है सारे स्विच से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे स्टार हो गया। फिर इस स्विच से जो कनेक्शन एक लाइन जा रही है सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे समझो ये क्या हो गया?
बस टोपोलॉजी का पार्ट हो गया। अगर से यहाँ पे ये बस टोपोलॉजी यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ये केबल ब्रेक हो जाए, तो आगे के सारे नेटवर्क ब्रेक हो जाएंगे, मतलब इंटरनेट जो एक्सेस कर रहे हैं ये लोग, इनका पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो दोनों का मिक्सचर्स होता है, नॉट ओनली द बस टोपोलॉजी। ओके, सो अदर डिफरेंट डिफरेंट जो टोपोलॉजी, द वे मैनर ऑफ द कनेक्शंस ऑफ द नोड्स कंप्यूटर्स के हैं, उनके फीचर्स हैं, उनके कुछ एडवांटेज हैं, उनके कुछ डिसएडवांटेज हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग रखो। इन्हीं पे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती फॉर्म होने की। तो बस टोपोलॉजी, इट मींस व्हाट, द बस टोपोलॉजी नेटवर्क टाइप विच एवरी कंप्यूटर नेटवर्क devices are connected to single cable when it's exactly to endpoint. This is called the linear bus topology. The bus feature of the bus topology is what transmit data only one direction. यहाँ पे data transmit हो रहा है only one direction. And every device connected to the single cable के साथ connected है, ठीक है। तो इसमें इसके कुछ एडवांटेज हैं। इट्स कॉस्ट इफेक्टिव होता है। केबल रिक्वायर इज द लिस्ट कंपेयर टू द अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। एक ही सिंगल लाइन जा रही है, इसी से सारे कनेक्टेड है। Used in a small network, it is easy to understand and easy to explain join together the cable. Okay, अब disadvantage क्या है? The cable fail, then whole network fail. For example, अगर से नेट केबल यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, तो आगे के सारे नोड्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। If network traffic is heavy, nodes are more, then परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीज। तो अगर से बहुत सारे नोड्स हैं इस पे, तो यहाँ पे अगर सब लोग पैकेट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग, कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पैकेट ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर सब सारे पैकेट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इस लाइन पे क्या होगा, बहुत सारे पैकेट ब्रॉडकास्ट होंगे, और इसको नेटवर्क स्ट्रॉम का कभी कभी सिचुएशन भी बन सकता है। ओके, पूरा लाइन एकदम बिजी हो सकता है, क्योंकि सिंगल केबल है। इट्स स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग टोपोलॉजी के कंपेयर में स्लोअर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही केबल से सारे कनेक्टेड है, एंड ऑल द नोड्स आर ब्रॉडकास्टिंग द पैकेट्स, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जो डेटा रिसीव करे, तो यहाँ पे काफी हैवी ट्रैफिक होता है। ओके, तो वे ऑफ, फ्रॉम द इमेज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वे ऑफ कनेक्शन ऑफ द बस टोपोलॉजी। दीज ऑल आर द एडवांटेज, दीज आर द डिसएडवांटेज, ये इसके फीचर होते हैं, तो इन्हीं को बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी शो करूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। बट इफ दिस पार्ट इज क्लियर, तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। The ring topology, it's called the ring topology because of the form of rings, such as the computers connected to the last one connection to the fix. Exactly two neighbors are each device. तो यहाँ पे देखो, each device connected with the neighbors, और इस तरह से ये पूरा एक दूसरे से connected होते हैं, in which manner. Then advantage of that transmission of the network is not affected by the high traffic or by adding the more nodes. Only the nodes having the token can transmit the data. देखो ये वर्ड याद कर रखना, टोकन। ये टोकन वर्ड किस में आता है, रिंग टोपोलॉजी में। तो इस पे रिलेट करके क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। चिप इज द इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। डिसएडवांटेज क्या होता है, ट्रबल शूटिंग इज द डिफिकल्ट टू रिंग टोपोलॉजी, एडिंग द डिलीटिंग एंड द कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड द नेटवर्क एक्टिविटीज, फेलियर ऑफ द वन कंप्यूटर एंड डिस्टर्ब द नेटवर्क होल नेटवर्क। अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो गया, so there is a problems of the network. So this is the what at disadvantage of ring topology. After that is star topology, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला टोपोलॉजी है। This is type of topology the computer are connected in a single hub through the cable. So this is what hub, पहले यूज होता था हब, अभी क्या होता है, स्विच होता है। अभी और भी स्मार्ट स्विच यूज होते हैं, यहाँ पे हब पहले यूज होता है, नाउ इट्स अ स्विच। Okay, this hub is the central nodes. All other nodes are connected to the central nodes. The feature क्या है, every node has its own dedicated connection to the switch. यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे, each connected with their own wire. Switch act as the repeater for the data flow. अब repeaters का मीनिंग क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल बताया था, कि जैसे ये जो लैंड केबल होता है ना, 100 मीटर से ज्यादा, फिर इसका कैपेसिटी डाउन हो जाती है, फिर ये वर्क नहीं करता, या तो फिर डेटा फ्लक्चुएशन होने लगता है। सो जैसे स्टार टोपोलॉजी का ये है, तो ये जो स्विचेस एक्ट एज अ रिपीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट मींस, अब जैसे फॉर एग्जांपल दो फ्लोर के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इट्स मोर देन 100 है, तो बीच में क्या कर सकते हैं, हम एक स्विच लगा सकते हैं, एक स्विच लगा देंगे। तो स्विच एक्ट एज अ रिपीटर, पहले रिपीटर यूज होता था, अभी स्विच यूज होता है। तो यहाँ से एक वायर इसमें आएगा, और फिर ये वायर यहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ पे डेटा को फ्लो करने के लिए होता है। बेसिकली जो कनेक्शन है यहाँ पे, इस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट रह सकते हैं इनसे।
ओके तो ये जो वर्ड था स्विच एक्ट एज अ रिपीटर, इसका मीनिंग यही है कि जहां पे 100 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होता है वहां पे हम इन बिटवीन दैट वी विल यूज द स्विचेस, कैन बी यूज विद द ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सी केबल। तो ये सब सारे वे हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज यू वांट फास्ट परफॉर्मेंस विद द फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक, क्योंकि ईच कनेक्टेड विद दैट, एंड यहाँ पे जो स्विच होता है इट्स मैनेज द ट्रैफिक। ओके, हब कैन अपग्रेड इजिली, आप इसको इजिली अपग्रेड कर सकते हो। इजी टू ट्रबल शूटिंग के लिए काफी इजी होता है। किसी एक कनेक्शन एक डिवाइस में प्रॉब्लम्स है या एक पोर्ट पे प्रॉब्लम्स है तो इजिली यू कैन डिटेक्ट। ओके, इजी टू मॉडिफाई, ओनली दिस नोड इज अफेक्टेड व्हिच हैज फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड्स वर्क स्मूथली। इन केस ऑफ कोई केबल ब्रेक हुआ, एनी केबल कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, अदर विल इंटरैक्ट एंड अदर विल कम्युनिकेट। इंस्टेड ऑफ जैसे रिंग टोपोलॉजी में था, अगर कोई एक प्रॉब्लम हो गया, टोपोलॉजी इज द एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बैंक एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यस रोहन, मोस्टली मैंने बताया ना सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही सिस्टम है, जो आपके स्कूल कॉलेजेस में सब देखोगे, जो लैब कनेक्टेड होता है तो ये स्टार टोपोलॉजी के थ्रू ही कनेक्टेड होता है। ओके, मोस्टली जैसे अभी एयरपोर्ट की बात करोगे, हॉस्पिटल की बात करोगे, तो यहाँ पे और भी हाइब्रिड बन जाते हैं, कुछ हाइब्रिड का भी कॉन्सेप्ट रहता है, बट मोस्टली जो यूज होता है वो स्टार टोपोलॉजी यूज। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट इंस्टॉलेशन इज हाई। अब यहाँ पे कॉस्ट इंस्टॉलेशन मतलब ईच नोड से देखो वायर गया हुआ है, तो एक तो ये कॉस्टिंग होती है, एक्सपेंसिव टू यूज, इट्स हब फेल व्हेन द होल नेटवर्क इज स्टॉपेड। इसका एक ये प्रॉब्लम है कि अगर ये स्विच खराब हो गया तो स्विच खराब हो गया, अगर स्विच में प्रॉब्लम हो गया तो सबके सब बंद पड़ जाएंगे। Okay, because all the nodes are depend. Performance is based on the hub that's depend on the capacity. अब इसका परफॉर्मेंस जैसा जितना स्मार्ट जो हब है, जो मैंने बताया कि अभी स्विच यूज होता है, जितना स्मार्ट स्विच होगा, जितनी कैपेसिटी का होगा, जितना बेटर होगा, तो उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस होता है। ओके, देन आता है आपका ट्री टोपोलॉजी। दिस इज द रूट नोड एंड ऑल द अदर्स नोड्स आर कनेक्टेड इन फॉर्मिंग द हायरार्की, इट्स कॉल्ड द ट्री टोपोलॉजी। इट शुड लिस्ट have the 3 level to the hierarchy, इसमें कम से कम 3 लेवल होने चाहिए। फीचर क्या, आइडियल फॉर द वर्क स्टेशन और लोकेशन इन द ग्रुप, यूज्ड इन द वाइड एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क में बेसिकली यूज होता है। एडवांटेज ऑफ द ट्री टोपोलॉजी, एक्सटेंशन ऑफ द बस एंड स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी का बेसिकली उसी का एक्सटेंशन, एक्सपेंशन ऑफ द नोड्स इज पॉसिबल एंड इजी मैनेज एंड मेंटेन, एरर डिटेक्शन इज इजिली डन। इसके जो डिसएडवांटेज, हेवीली केबल, कॉस्टली है, इट फॉर्म ऑफ द नोड्स एंड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, एंड सेंट्रल हब फेल, नेटवर्क फेल। अगर कोई सेंट्रल हब फेल हो गया, समझो यहाँ पे अगर इससे कनेक्ट करने का कोई फेल हो गया, तो ये पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। सो सारे टोपोलॉजी के अपने अपने एडवांटेज है। देखो, मेश टोपोलॉजी सबसे डेंजर ये होता है, बेनिफिशियल भी है बट सबसे डेंजर, ईच नोड्स इज कनेक्टेड टू ईच अदर। In a mesh topology, interact in elaborate structure of the point-to-point connections where the nodes are interconnected. Mesh topology can be full or partial mesh. Partial mesh is topology the mostly interconnected with the few nodes with only 2 or 3 connection, while the full mesh topology is the surprise full interconnected. मतलब each node is connected with each other. फुल्ली कनेक्टेड, रोबस्ट, नॉट फ्लेक्सिबल, इजी नहीं होता इसको चेंज करना। एडवांटेज ऑफ द मेश टोपोलॉजी, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, इट्स रोबस्ट, फॉल्ट इट्स डायग्नोस्ड इजिली, प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आपका कहीं पे मतलब ईच डिवाइस इसको इससे काम है तो इससे कम्युनिकेट कर सकता है, फिर ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये अदर्स डिवाइसेस नॉट एबल टू एक्सेस दैट डेटा। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑब्वियसली काफी इजी होता है, बट डिसएडवांटेज क्या है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इतने सारे कनेक्ट करना, उनको कॉन्फ़िगर करना, उनको डिफाइन करना, इट्स डिफिकल्ट। केबल कॉस्टिंग है, काफी केबल जाएगा। बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड विच इज वेरी कॉस्टली। ओके, सो दिस इज द फीचर ऑफ द मेश टोपोलॉजी। देन हाइब्रिड, मोस्टली स्टार एंड बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो हाइब्रिड इट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ द 1 or 2 टोपोलॉजी, मोर देन 2 टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड। It's a 2 different type of the topology, which is a mixture of the 2 or more topology. For example, if the one office on a department ring topology used and other star topology used, so connecting these topology will result of the hybrid topology, ring topology and star topology. It is a combination of the 2 topology, inherit the advantage and disadvantage of the topology. जिसमें भी जिसके disadvantage है उसको उस पार्ट को बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए दूसरी टोपोलॉजी यूज होती है। Reliable and error detections, troubleshooting is easy, scalable size can be increased easily, and disadvantage क्या है, complex in design and costly। तो जिस जो मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से फ्लोर है, इस तरह से फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, राउटर लगा हुआ है,
ये आपका ISP है, यहाँ से इंटरनेट यहाँ पे आया हुआ है। अब इस फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इस फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे एक स्विच है, ये केबल आया एंड इट्स कनेक्टेड। अब यहाँ पे ये कनेक्टेड है, दिस इज द फीचर ऑफ व्हाट, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, बट ये कनेक्शन फिर इस पे जो आ रहा है, यहाँ से ये कनेक्शन आ रहा है, ये भी स्विच है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है। तो हियर इज ऑल्सो व्हाट, स्टार टोपोलॉजी। बट ये जो कनेक्शन आ रहा है, ये इस तरह से, ये जो कनेक्शन स्विच टू स्विच आ रहा है, यहाँ पे भी एक स्विच है, स्विच या हब, वॉट एवर यू कैन से। ठीक है, वॉट एवर यू कैन से। तो दिस इज वॉट बस टोपोलॉजी इसको बोल सकते हो कि ये कनेक्शंस, ये डिवाइस इसको कनेक्ट करा, ये डिवाइस इसको कनेक्ट करा, ये डिवाइस इसको कनेक्ट करा। स्विच टू स्विच जो कनेक्शन है, स्विच टू स्विच कनेक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बस टोपोलॉजी। एंड यहाँ पे स्विच के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ये एग्जांपल ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। Example of the mesh topology. Example of mesh topology, I'm not exactly aware, but in this part, the each nodes are connected to each other. यूज होता होगा कहीं पे। मैंने अभी नेटवर्किंग एक्सपीरियंस में तो अभी अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा है। किसी टेक्नोलॉजी में यूज होता होगा, किसी प्लेस पे, किसी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क बाय देयर कैटेगरी। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। यहाँ पे भी सिनेरियो के थ्रू एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लोगे। देखो अभी जो हमने लर्न किया, द वे ऑफ कनेक्शन। नाउ द classification of the networks and in their category. So these all are the most well known: PAN, LAN, WAN and MAN. तो इनके related definitions as well as features, what are the features, then try to understand. तो personal area network is what, PAN। full form याद रखना, sometime full form भी पूछ लेता है, but if we are not aware तो difficult बन जाता अपने लिए question। So personal area network is the computer network organized around the individual person. In general, consists of the mobile, computers, cell phone, personal digital assistant, PAN enable the communications among these devices. It can also be used to communicate among the personal devices themselves connect to the digital level network, internet, and this PAN can be constructed using the wireless or cables. Okay, तो इसका देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जो पैन का एरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लैपटॉप है। अब लैपटॉप में आपने ब्लूटूथ ऑन कर दिया, ठीक है, ब्लूटूथ ऑन कर दिया। अब इस ब्लूटूथ के थ्रू समझो कि आपका हेडफोन कनेक्टेड है, इस ब्लूटूथ के थ्रू आपका मोबाइल फोन कनेक्टेड है, इस ब्लूटूथ के थ्रू आपका जो या फिर वायरलेस माउस है जो कि इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इससे इंटरेक्ट कर रहा है, प्रिंटर भी इससे कनेक्टेड है, कोई दूसरा सिस्टम आपके पास है उसको भी आपने इस सिस्टम से कनेक्ट किया, एंड दिस सिस्टम इज एक्सेसिंग योर रिसोर्सेस, योर फाइल सिस्टम फ्रॉम दिस पीसी। बेसिकली एक जो रूम के अंदर का इन्वायरमेंट होता है, एक सिंगल पीसी के थ्रू एक रूम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। अगर से क्वेश्चन पूछ लिया तो ब्लूटूथ एग्जांपल ऑफ, बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, तो पैन याद रखना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, after that, local area network, LAN. LAN is a network which is designed to operate over the small physical area such as the office, factory, or group of the buildings. LAN are easy to design, troubleshooting, exchange to information, sharing the resources become easy because of the LAN. The LAN mechanism are connected in a single cable, and different type of the topology such as the star, tree, bus, ring can be used. ये सब सारे use हो सकते हैं LAN में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देख लो, स्विच है यहाँ पे, LAN cable के through these all other devices are connected. तो basically in a building, in a single building जो एक नेटवर्क होता है, जैसे स्कूल का कोई नेटवर्क हो गया, कोई ऑफिसेस का अपना पर्सनल नेटवर्क हो गया, एंड ऑल द डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आर कनेक्टेड विद द network and they are accessing and they are sharing the data. So this is the example of LAN. So local area network is for what, a single building के concept में कहीं आया, single office के concept में आया, तो that there is a best example use of the network is what, LAN. ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो जो मैं प्रीवियस एग्जांपल बता रहा था कि ये आपका राउटर हो गया, वाईफाई राउटर, यहाँ पे इंटरनेट आया, एंड दिस ऑल द सिस्टम, ऑफिस के जितने भी सिस्टम है इस स्विच से कनेक्टेड है। इट मे बी पॉसिबल कि वायर हो सकता है, नॉट वायर हो सकता है, वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं, सो बट दे आर शेयरिंग द रिसोर्सेस। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैन। Then wide area network, WAN is what? When the network span over the large distance, when the computers connected to each other or at widely spread location, local area network can't be used. A wide area network WAN is installed. The communication between the different user WAN is established using the leased telephone line, a satellite link or a similar channel. जो भी पॉसिबल होता है, जैसे ये कब होता है ना, ब्रॉडबैंड लाइन होती थी इंटरनेट के लिए।
It is a cheaper and more efficient to use the phone network for the link. Most WAN network are used to transfer the large block of the data between its user. तो बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, जैसे डिफरेंट सिटीज में किसी बैंक का ब्रांचेस है एंड दे वांट टू शेयर देयर डेटा एंड दे वांट टू कनेक्ट इट, और होता भी है आप कहीं से भी अभी यहाँ पे पैसा डालो, आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे पैसा डालो एंड देन कोई दूसरे सिटी में है, वहां से उसको बोलो चेक करे या निकालने के लिए बोले तो वहां के ब्रांच पे भी जाके चेक कर सकता है कि वहां पे अपडेट हो गया। तो दे आर कनेक्टेड विद व्हाट वैन, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस हैं, दे आर शेयरिंग द डेटा। सो कंसर्न इज व्हाट आईएसपी के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। आईएसपी जो कि आपकी एक लीज लाइन भी हो सकती है, टेलीफोन लाइन भी हो सकती है, वॉट जिसके थ्रू आप कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे इंटरनल ऑफिस समझो, ये ऑफिस 1, ऑफिस 1, ऑफिस 2 एंड ऑफिस 3। तो ऑफिस के इनसाइड जो होता है वो क्या होता है, लैंड नेटवर्क होता है, किसी एक बिल्डिंग में वो लैंड के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, बट वाइड वाइड एरिया इट मीन बाहर के साथ कनेक्टेड है, ब्रांच टू ब्रांच कनेक्ट होना है, तो यहाँ पे वैन होगा। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो भी कनेक्शन होता है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ पे एक उसको बोलते हैं क्या, वर्चुअल वीपीएन सर्विस। वीपीएन सर्विस जो होता है, वर्चुअल प्राइवेट वीपीएन, तो ये भी होता है, बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। तो इसके थ्रू भी ब्रांचेस टू ब्रांचेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द व्हाट कांसेप्ट है बेसिकली, थ्रू डिफरेंट लोकेशंस पे जो है डिफरेंट सिटी में है, इफ दे वांट टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें आईएसपी जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट समझना, किस किस इन्वायरमेंट के लिए किस टाइप का नेटवर्क यूज होता है। देन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मैन, it is a between the LAN and WAN technology that cover the entire city, एक पर्टिकुलर सिटी के लिए होता है। हाँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, it is a user similar technology as a LAN, it can be single network such as the cable TV। किसी भी पर्टिकुलर सिटी में क्या होता है, एक केबल टीवी होती है। Are measure of the connecting numbers, LAN are large networks so that resources can be used as a LAN to LAN as well as device to device। तो एक पर्टिकुलर सिटी के कोई नेटवर्क है वहां का, सो उसको क्या बोलते हैं, मैन। ठीक है, उसको बोलते हैं मैन। वर्चुअल नेटवर्क भी जो मैंने बताया वैन वाला कॉन्सेप्ट, ये एक पर्टिकुलर सिटी में भी यूज होता है, ऑफिस टू ऑफिस कनेक्ट करने के लिए, ऑफिस टू ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज व्हाट, यहाँ पे सिटीज है, रेजिडेंशियल एरिया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, ऑफिस बिल्डिंग है, तो यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर नेटवर्क जो कि लिमिटेड सिटी के अंदर है, सो इट्स कॉल्ड व्हाट, इसको मैन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के वेराइटीज के अकॉर्डिंग जस्ट इनका जो क्लासिफिकेशन है इसको ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का, व्हाट इज द प्राइवेट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, नेटवर्क प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज व्हाट सेट ऑफ रूल होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, उनके डिफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, एंड दे आर यूज फॉर विच टेक्नोलॉजी, किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज होते हैं। So word protocol come from the Greek protocols, means leaf of paper uploaded to the manuscript volume or described as a connect. Basically, network protocol is what set of rule that govern the communications medium computer on network. Network protocol is a normal standard and policies compress the rule, procedures and format that define the communication between the two or more devices over the network. So in which manner they will communicate, किस तरह से data transfer होगा, क्या क्या set of rules होंगे, that is what protocol. Network protocol is govern the end-to-end process of timely, secure, manage data or network communications. Okay, so requirement of the protocol. So protocol की जो requirement होती है for what, data format for the data exchange, flow control, routing, acknowledgement, loss of information and sequence control. So for these purposes we use the protocol. सारे protocols के अपने rules different होते हैं, तो उसके बहुत डिटेल में अपने को नहीं जाना है, सारे प्रोटोकॉल को एकदम इन डिटेल्स स्टडी नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखना है कि दिस प्रोटोकॉल यूज फॉर व्हाट एंड फुल फॉर्म ऑफ व्हाट, फुल फॉर्म ऑफ इट। तो ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। So protocol function, identify the error, apply the comparisons technique, decide on how announce send data and how to announce receive the data and how address data is to be sent. ठीक है, so these are the well-known protocol which is important for our understanding. TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। STP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अच्छा इसका प्रोटोकॉल यहाँ से यहाँ पे रहेगा। ओके, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज कंट्रोल, एंड SCTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्ट्रीमिंग के लिए जो यूज होता है, जैसे अभी आप यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग जा रहे हो, ओके अभी भी जैसे मैं स्ट्रीमिंग ही कर रहा हूँ, समझो आप लोगों से साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो यूज हुआ रहेगा ARP address resolution protocol. So these are the some well-known protocols and they're used just here. So TCP is for what? TCP IP is a set of rule protocol governing the communication among all the computer on the internet. TCP IP developed in 1978 and driven by the Pop Khan and Vinith Kraft. TCP is a combination of the two separate protocol, transmissions control protocol TCP and internet protocol. So it means how the data will transmit on internet, the concept of the IP addresses, जो IP addresses हम assign करते हैं, इसके थ्रू किस तरह से कम्युनिकेट करेगा सिस्टम। सो इन सबका जो सेट ऑफ रूल्स है, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट TCP IP, द ट्रांसमिशन कंट्रोल रिलेशनशिप of ensuring the reliable transmission of the data across the network connections network. TCP check the packets for error and submit the request for retransmit of any are found. Okay, so this is the basically work, basically internet connections के लिए IP वाला जो concept है, these all the things handled by the TCP IP. HTTP hypertext transfer protocol, it's an application protocol for distributed, collaborate and hypermedia information system. At HTTP is the foundation of the data communication of the world wide web. ओके, वर्ल्ड वाइड वेब जो हम यूज करते हैं, आपने वेबसाइट के स्टार्टिंग में देखा होगा लिखा रहता है HTTP एंड HTTPS. ओके, HTTPS इट मींस होता है सिक्योर. डेवलपमेंट ऑफ द HTTP was initiated by the team Berners-Lee. अब देखो ये सब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये पूछ लेगा आपसे, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा. ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? Roshan's Intom Gray Grief, the father of internet. Okay, so that is one additional information. If you are not aware, so just understand. Okay, applications layer protocol designed with the framework of the internet protocol suite. आफ्टर दैट FTP, जब भी हम फाइल ट्रांसफर करते हैं मेल के थ्रू भी करते हैं, तो अगर फाइल ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है. यहाँ पे सारे सेट ऑफ रूल होते हैं फाइल ट्रांसफर के. इट इज अ स्टैंडर्ड internet protocol for transmitting the file between the computers on the internet over the TCP IP connection. Okay, the FTP file transfer protocol, it's client server protocol that rely on the two communication channel between the client and server, the command line for controlling the conversation and data channel and transmitting file content. So basically file transfer जो system होता है mailing पे या फिर internet पे, even if you are connected with the that software, what we can say, जैसे होता है ना कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो जो सर्वर पे फाइल भेजनी होती है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी आता है, जिस FTP फाइल ट्रांसफर्स के लिए, तो वो आप यूज करते हो. उसका नाम देखो क्या है, फाइल जिला करके नाम है आई थिंक. तो उसमें भी FTP सर्विसेज होती हैं, तो ये सब फाइल ट्रांसफर्स के लिए होता है. नेक्स्ट आपका SMTP मेलिंग सर्विस. अगर आपको टाइप के प्रोग्राम्स को डेवलप करना है या फिर जो हम मेल यूज करते हैं, तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? SMTP. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर द मेल. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू इंटरनेट. इट इज नॉट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बट इट इज एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल. ठीक है. देन UDP and unreliable connections less protocol used to control the management of the application level services between the computers. It is used to transport by some application which must provide their own reliability. So ICMP internet control message protocol provide the manage and error reporting to help the manage to process and sending data between the computers. So when you will develop the software, इस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो वहां पे ये सब सारे टाइप के जो प्रोटोकॉल्स के हैं इनको यूज करोगे. इसके बाद इसमें और डिटेल में जाओगे तो इसके पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स का नंबर होता है 8080 8181. इस टाइप के बहुत सारे पोर्ट्स होता है इन डिटेल इफ यू विल स्टडी. Okay, ARP address resolution protocol enable the packaging of the IP data and in internet package. It is the system and managing the protocol that used to find the internet hardware address from the specific IP address. Okay, POP stand for the post office protocol. Is generally used for the support a single client. There are the several version of the POP, but POP3 is the current standard. ये आपने I think उसमें भी देखा होगा. राउटर में PPP होता है.
POP3 correct. So POP is the applications layer internet standard protocol. POP does not allow the search facility. It is not suitable for accessing the non-mail data. Okay, so these are the different type of the protocol. My suggestion is what कि just try to understand the full form of it. इनके full form remember रखो. Full form से relate करके question की possibility रहती है. As well as and these protocol at least जितना मैंने यहाँ पे explain किया इतने से at least aware रहो. तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन फॉर्म हुआ तो इजिली यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ सी जो भी हमने स्टडी किया इस पे किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं इसका भी आइडिया आपको होना इंपॉर्टेंट है. तो सी हियर मैंने कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं रिलेटेड टू दीज पार्ट जो हमने डिस्कस किया. तो क्या क्या टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं. तो देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अपडेट यू कैन रिवाइज. देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इट्स रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्वर एज प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन. सो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड पेराफेरियल. सो यहाँ पे जो होगा देखो इट्स रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर. स्टार्टिंग में मैंने आपको जो इमेज दिखाई थी उस इमेज के समझ सकते हैं. एंड सर्वर प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन. तो अदर सॉफ्टवेयर जो भी प्रोवाइड करते हो तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलाउ द पीपल टू यूज द कंप्यूटर, टू अलाउ द पीपल टू यूज द कंप्यूटर. देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है हार्डवेयर, इसको ध्यान देना. टू कीप द सिस्टम प्रोग्रामर्स employed to make the computer easier to use. ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा. इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट मोस्ट रेलिवेंट आंसर कौन सा है? इट्स ए राइट. ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. मोस्ट रेलिवेंट आंसर इज व्हाट टू मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर. दिस इज द वर्क ऑफ व्हाट